Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Dr. Muti, Assistant Professor at Physics, Islamic College, Peshawar. Today we are going to study Kirchhoff laws. जहाँ हमने छोड़ा था कॉलेज में, so we are taking the start from there. What is meant by Kirchhoff laws? याद रखिए, कभी कभार इस तरह होता है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम by applying directly ओम लॉ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या ऐसे सर्किट्स जिनमें हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल और इन सीरीज, या ऐसे सर्किट्स जिसमें एक से ज्यादा सोर्सेज हो, बैटरीज हो, तो ऐसे सर्किट्स को वी कॉल कॉम्प्लेक्स सर्किट्स. तो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में हम ओम लॉ डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि we will have to apply the Ohm law in terms of the Kirchhoff laws. For example, if you look at here, look at this is a complex circuit. If you say the R1 of R2 series में है, तो आप अपने में R5 को डिसाइड नहीं कर सकते कि ये R1 के साथ सीरीज में है या पैरेलल में, या R2 के साथ ये सीरीज में है या पैरेलल में, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते. Similarly, if you see, अगर आप कहते हैं R3 और R4 सीरीज में है, what about R5 हम डिसाइड नहीं कर सकते, या आप कहते हैं R2 और R5 पैरेलल में है, तो what about R5 we can't decide. तो ऐसे सर्किट्स को we call complex circuits. कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को हम डायरेक्ट ओम लॉ अप्लाई नहीं कर सकते. We will have to apply the Ohm law in terms of the Kirchhoff laws. यानी जिस तरह किरचॉफ कहते हैं उसी तरह हम इस लॉ को, इस ओम लॉ को अप्लाई करेंगे. डायरेक्ट ओम लॉस कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को एप्लीकेबल नहीं होता. ओके, तो पहला कंसेप्ट ये था कि किरचॉफ लॉस हम क्यों पढ़ते हैं, because there are certain circuits to which we can't apply the Ohm law directly. Okay, then you will have to apply the Ohm law in terms of the Kirchhoff laws. So there are two laws of Kirchhoff. Number one, Kirchhoff current law. Yeah, this is also called KCL. This law states that the algebraic sum of all the currents at a junction in a circuit is equal to 0. This law states that the algebraic sum of all the currents at a junction in a circuit is equal to 0. The sum now, the algebraic sum. And you will see algebraic sum has got a particular logic. Okay, algebraic sum का क्या मतलब है? Algebraic sum का मतलब है in which we bother about the signs, in which we take care of the signs, जिसमें हम positive negative signs का खास ख्याल रखते हैं. जिस तरह आप लोगों ने स्कूल लेवल पे अलजेब्रा पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, उसमें आप एक पॉजिटिव की जगह नेगेटिव या नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिखते थे तो पूरा क्वेश्चन गलत होता था. तो यहाँ पर समना, the algebraic sum, this law states that the algebraic sum of all the currents at a junction in a circuit is equal to 0, and mathematically we can write it like this: sigma I is equal to 0. For example, यहाँ पर आप देखिए, these are four resistors, or you can say these are four conductors, and this is the junction. याद रखिए, junction का मतलब है when more than 3 conductors are joining at a particular point. ठीक है, 3 or more conductors are joining at a particular point, तो उसे हम कहते हैं जंक्शन.
और अगर दो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं उसे हम कहते हैं नोड। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस है, अगर ये हमारे पास एक रेजिस्टर है and let us suppose this is another resistor. अब ये रेजिस्टर इस रेजिस्टर के साथ अगर यहाँ पर कनेक्टेड है तो याद रखिए इसे हम जंक्शन नहीं कहते, इसे हम कहते हैं नोड, लेकिन दिस इज अ जंक्शन। और आप देखिए यहाँ पर I1 and I2 currents are entering, I3 and I4 currents are leaving. So we say the algebraic sum of all the currents at a junction in a circuit is equal to 0. और याद रखिए किरचॉफ के इस लॉ में दो कन्वेंशन जो है वो लिए हैं। कन्वेंशन नंबर 1 ये है कि currents entering the junction are taken to be positive and currents leaving the junction are taken to be negative. जो करंट्स जंक्शन की तरफ आ रही हैं इनको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो करंट्स जंक्शन से लीव कर रही हैं इनको हम नेगेटिव लेते हैं। मसलन आप इधर देखें, I1 and I2 currents are entering the junction, I3 और I4 currents are leaving the junction. So mathematically we will write like this, that we will write sigma I is equal to 0 means I1 current is entering, so this is positive. I2 is also entering, so this is positive. And look at I3 is leaving, so I write like this minus I3, or this will be plus, and minus I4 is equal to 0. In other words, we will write like this. This equation can be written like this: I1 plus I2 plus into minus minus I3 plus into minus minus I4 is equal to 0. अब आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास न सम है न डिफरेंस। इफ यू लुक एट हियर, I1 is positive, I2 is positive, I3 is negative, I4 is also negative. तो ये हमारे पास न सम है न डिफरेंस है। This is called algebraic sum. अब इस algebraic sum में एक लॉजिक है। यहाँ से देखिए किरचॉफ करंट लॉ का फायदा ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में इन एनी रेजिस्टर यू कैन कैलकुलेट द current. For example, if you want to calculate the current through R1, R2, R3, R5, okay, in any complex circuit you can calculate any particular current I1, I2, I3, I4, I5, I6 and so on. So this is algebraic sum, not the sum. Or in other words, I can write this equation like this: I1 plus I2 is equal to I3 plus I4. What is I1 plus I2? This is the sum of the currents entering the junction. And what is I3 plus I4? This is the sum of the currents leaving the junction. So please remember, KCL को या किरचॉफ करंट लॉ हम इस तरह भी स्टेट कर सकते हैं। This law states that the sum of the currents entering a junction is equal to the sum of the currents leaving the junction. यानी जितना करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उतना करंट लीव करेगा। This law states that the sum of all the currents entering a junction is equal to the sum of all the currents leaving. In other words, we can say like this:
the charge per unit time entering the junction. Like this here, by definition we can say current means delta Q by delta T. इसका मतलब है कि जितना चार्ज पर यूनिट टाइम एंटर करता है उतना चार्ज पर यूनिट टाइम लीव करता है। बाय करंट भी डेल्टा Q बाय डेल्टा T, तो इसका मतलब ये कि जितना चार्ज पर यूनिट टाइम इस जंक्शन की तरफ एंटर करता है उतना चार्ज पर यूनिट टाइम लीव करता है। अगर आप इन दोनों को कैंसिल करें तो इसका मतलब ये है कि चार्ज entering the junction is equal to the charge leaving the junction. So what does this mean? इसका मतलब है conservation of charge. इसका मतलब है conservation of charge, and this means that KCL tells us about the conservation of charge. KCL is a manifestation of the representation of charge. It is a representation. It is a manifestation of the conservation of charge. KCL हमें ये बताता है कि charge is conserved. और law of conservation of charge क्या है? एक universal law है. It means that this law is based on a fundamental law, on a basic law, which is the law of conservation of charge. तो याद रखिए KCL का main result ये है कि हमारे पास charge is conserved. ठीक है? तो let me repeat. This law states that the algebraic sum now, the algebraic sum of all the currents at a junction in a circuit is equal to 0. For example, if you look at this diagram, this circuit, तो ये हमारे पास है जंक्शन और इस जंक्शन की तरफ करंट I1 is coming, I2 is coming, I3 is leaving, I4 is leaving. If you see I1 plus I2 minus I1 minus I4 is equal to 0. ये दोनों करंट हमने क्या लिए? पॉजिटिव. ये दोनों करंट हमने क्या लिए? नेगेटिव. Why? According to these two conventions. किरचॉफ ने ये दो कन्वेंशन दिए हैं कि currents entering the junction are taken to be positive and currents leaving the junction are taken to be negative. तो आप लोग देखिए this is algebraic sum. ये sum नहीं है, this is algebraic sum. क्योंकि इसमें दो currents positive हैं और दो currents negative हैं. In other words, this equation could be written like this: I1 plus I2 is equal to I3 plus I4. It means जितना करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उतना करंट जंक्शन से लीव करेगा. In other words, alternatively we can say that charge is conserved. अब इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपको I2, I3, I4 का पता है, you can calculate I1. या फॉर एग्जांपल अगर आपको I1, I2, I4 का पता है, you can calculate I3 and similarly the others. तो प्लीज remember KCL के जरिए किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में through any resistor you can calculate the current. So KCL या किरचॉफ जो लॉज है ये हम उन सर्किट्स को अप्लाई करते हैं which are complex. और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स का मतलब ये है जिसमें हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि रेजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल, या ऐसे सर्किट्स जिनमें एक से ज्यादा सोर्सेज हो, बैटरीज हो 2, 3, 4 एंड सो ऑन. तो फिर ऐसे सर्किट्स में हम डायरेक्ट ओम लॉ अप्लाई नहीं कर सकते. वी विल हैव टू अप्लाई द ओम लॉ इन टर्म्स ऑफ द किरचॉफ लॉस. ठीक है? Now we are going to study another Kirchhoff law.
दूसरी ला में पढ़ा KCL में कि algebraic sum का मतलब है in which we bother about the science, in which we take care of the science, यानी जिसमें ऐसा sum जिसमें signs are important. Mathematical science, positive, negative, they have got a proper meaning, a particular meaning. So this is not the sum, the algebraic sum. So this now states that the algebraic sum of all the voltages now, the algebraic sum of all the voltage changes in a loop in a circuit is equal to 0. Yani sigma b is equal to 0. Now look at this is a particular circuit. और आप देखिए इस सर्किट में दो सोर्सेज ऑफ EMF है, दो बैटरीज हैं, ओके, एंड देयर आर टू रेजिस्टर्स. If the EMF of that source number 1 is epsilon 1, this is epsilon 2, that is resistor number 1, this is resistor number 2, and this is इस सर्किट में सिर्फ एक लूप है, which is A B C D A. देखिए याद रखिए यहाँ पर in a loop in a circuit का ये मतलब है कि in any loop in a circuit. Inshallah we will then do a problem regarding this KVL. Then you will understand कि इस सर्किट में तो सिर्फ एक लूप है. देखिए जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं उन सर्किट्स में एक से ज्यादा लूप्स भी पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. सो ये सिर्फ एक लूप है, लेकिन इन अ लूप का मतलब है इन एनी लूप इन अ सर्किट. किसी सर्किट में एक लूप है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हर लूप के अराउंड, हर लूप के अराउंड इफ यू टेक द algebraic sum of all the voltage changes, तो according to KVL, according to Kirchhoff voltage law, this will be 0. Okay? और इस लॉ की अपनी इंपॉर्टेंस है. इसके जरिए हम किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर सकते हैं, इवन करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी अननोन सोर्स का EMF कैलकुलेट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह. देन वी विल स्टडी न्यूमेरिकल्स. इस लॉ में अच्छा एक बात आप याद रखिए कि ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, अगर आप ये डायरेक्शन ऑफ करंट प्रॉब्लम में गिवन है तो ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आप फिर इसी तरह को कंसीडर करेंगे. लेकिन अगर आप ये डायरेक्शन ऑफ करंट गिवन नहीं है तो आप अपनी तरफ से यू कैन टेक एनी डायरेक्शन. और याद रखिए जो डायरेक्शन हम लेते हैं तो इसे हम assume current का डायरेक्शन कहते हैं. और याद रखिए assume current का मतलब है conventional current, लेकिन assume conventional current, assume का मतलब है कि जो आप लोगों ने फर्ज किया है कि बस let us consider कि this is the assumed conventional current. Maybe वो conventional current ना हो, electronic current हो. हमने देखिए इसी चैप्टर में पहले पढ़ा था कि conventional current जो है वो हायर पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, या कन्वेंशनल करंट बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, या कन्वेंशनल करंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो करता है. तो ये हमने इसी चैप्टर में लास्ट टाइम पढ़ा था. तो यहाँ पर अज्यूम करंट का मतलब है अज्यूम्ड कन्वेंशनल करंट. अज्यूम कन्वेंशनल करंट का मतलब ये है, देखिए आपको पता है कि ये टर्मिनल में पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब है कन्वेंशनल we say this is at higher potential and conventionally we say this is at higher potential. लेकिन maybe आप देखिए अगर ये ज्यादा पॉजिटिव है, ये कम पॉजिटिव है, तो with respect to this then ये ज्यादा पोटेंशियल पर होगा, ये कम पर होगा. या फॉर एग्जांपल नेगेटिव को हम लोअर पोटेंशियल अज्यूम करते हैं, लेकिन maybe ये ज्यादा नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव है, या ये ज्यादा नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव है. तो in this case we are talking relatively, यानी we consider one terminal with respect to
another at higher or at lower potential. तो please remember, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ये हम खुद अज्यूम करते हैं, लेकिन अज्यूम लफ्ज का मतलब है कि हम ये कंसीडर करते हैं कि लेट अस सपोज ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है, मे बी वो गलत हो या सही, लेकिन हम अज्यूम करते हैं। लेट दिस इज अज्यूम कि कन्वेंशनल करंट जो है वो सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर आप कहते हैं ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो नो, you can take it clockwise, you can take it anti-clockwise, doesn't matter. This is your choice. लेकिन याद रखिए इस लॉ में we consider four conventions। जिस तरह के सीएल में हमने दो conventions consider किए थे। Convention number 1 ये था कि currents which are entering the junction are taken to be positive and currents which are leaving the junction are taken to be negative। लेकिन याद रखिए in this law we are going to consider four conventions। Convention number 1 ये है कि अगर आप बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, अगर आप बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो एप्सिलॉन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। देखिए मसलन लुक एट द लूप, अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, देखिए हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो एप्सिलॉन 1 इज टेकन टू बी पॉजिटिव। इसी तरह देखिए अगर आप सी से डी की तरफ आ रहे हैं, आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं तो एप्सिलॉन 2 इज टेकन टू बी नेगेटिव। और क्यों लेते हैं? क्योंकि जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब है कि आप लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो लोअर से हायर का मतलब है देयर इज अ राइज इन पोटेंशियल एंड राइज इन पोटेंशियल इज टेकन टू बी पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं तो प्रिंसिपली यू आर कमिंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो जब आप हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं तो एप्सिलॉन को या ईएमएफ को हम नहीं कर रहे। इसी तरह along the direction of assumed current IR drop is taken to be negative। IR drop का मतलब है drop का मतलब है potential difference। IR drop का मतलब है potential difference across a resistor। According to the Ohm law, IR drop का मतलब है potential difference। देखिए हमने बार-बार पढ़ा था इसी चैप्टर में कि कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाता है। तो देखिए जब करंट हायर से लोअर की तरफ जाता है तो देयर इज अ ड्रॉप इन पोटेंशियल, देयर इज अ डिक्रीज इन पोटेंशियल। सो डिक्रीज इन पोटेंशियल इज टेकन टू बी नेगेटिव। Along the direction of assumed current, IR drop is taken to be negative। जब आप हायर से लोअर की तरफ जाते हैं तो IR drop potential difference across a resistor is taken to be negative। और जब आप opposite direction में जाते हैं तो it is taken to be positive। अब यहाँ पर opposite direction नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम हम इंशाल्लाह इस पे करेंगे, then you will understand कि opposite direction का क्या मतलब है। तो अब आप जरा गौर से देखिए, we are going to apply KVL or Kirchhoff voltage law to this loop। इस सर्किट में सिर्फ एक लूप है A B C D A। तो गौर से देखो, according to the statement we can say that the algebraic sum of all the voltage changes in a loop in a circuit is equal to 0। okay? अब हम KVL अप्लाई करते हैं। तो look at students, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, A से आप स्टार्ट ले लें। तो जब आप A से B की तरफ जा रहे हैं, और से देखिए जब आप A से B की तरफ जा रहे हैं तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। देखिए एप्सिलॉन 1 इज पॉजिटिव। जब हम B से C की तरफ आ रहे हैं, ये कौन सा डायरेक्शन है? कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है, लेकिन अज्यूम कन्वेंशनल करंट।
ये हमने फर्स्ट यानी कि कन्वेंशन में मे बी ये अलग हो, मे बी ये इलेक्ट्रॉनिक हो, फिर वो प्रॉब्लम से पता चलेगा। प्रॉब्लम में अगर करंट नेगेटिव आ जाते हैं तो वी से दिस इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, और अगर प्रॉब्लम में करंट पॉजिटिव आ जाते हैं तो वी से दिस इज कन्वेंशनल करंट। तो वी विल स्टडी दिस इन द प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह। लेकिन देखिए जब आप बी से सी की तरफ जा रहे हैं तो आप कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो IR ड्रॉप इज टेकन टू बी नेगेटिव। तो देखिए मैंने लिखा है माइनस IR1। फिर आप C से D की तरफ आ रहे हैं तो देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, तो माइनस एप्सिलॉन 2। और फिर आप देखिए D से A की तरफ तो माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। अक्सर स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं है, ये सेम डायरेक्शन है। याद रखिए डायरेक्शन ऑफ करंट का हमेशा मतलब होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसके अलावा करंट का डायरेक्शन नहीं होगा। द करंट विल बी ईदर इन द सर्किट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो लुक जब आप A से B की तरफ जा रहे हैं, A से B की तरफ तो एप्सिलॉन 1 इज पॉजिटिव, B से C की तरफ you are going along the direction of conventional current, अब देखिए माइनस IR1। फिर आप C से D की तरफ आ रहे हैं, अब देखिए आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, तो नेगेटिव तो माइनस एप्सिलॉन 2। और फिर आप along the direction of assumed current जा रहे हैं, तो माइनस IR2 is equal to 0। Now look at dear students, if you look at this equation, तो इस इक्वेशन में भी एप्सिलॉन 1 पॉजिटिव बाकी नेगेटिव है। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो वोल्टेज चेंजेस है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये हमें बता रही है कि ये ना सम है ना डिफरेंस है। देखिए ये ना इसको ना हम सम कह सकते हैं ना डिफरेंस कह सकते हैं। Therefore this is called algebraic sum, और algebraic sum में each and every sign has got a particular meaning। For example, इस नेगेटिव का मतलब है कि you are going along the direction of assumed current। इस पॉजिटिव का मतलब है कि आप बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाकर केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। If you see this is algebraic sum, not sum, okay, and this can also be written as epsilon 1 minus epsilon 2, और ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, उस साइड पे ले जाए तो IR1 plus IR2। So in other words we say that the algebraic sum of all the EMFs is equal to the algebraic sum of all the IR drops। याद रखिए ये भी algebraic sum है, क्योंकि अगर इस साइड पर कोई चीज पॉजिटिव है तो फिर उस साइड पे नेगेटिव हो जाएगी, इस साइड पे नेगेटिव है तो उस साइड पे पॉजिटिव हो जाती है। तो आप लोग देखिए दिस इज algebraic sum, यानी किसी भी लूप में, किसी सर्किट के किसी भी लूप में, लूप नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, व्हाटएवर इट मे बी, किसी भी लूप में अगर आप तमाम सोर्सेस का जो ईएमएफ है उनका अलजेब्रिक सम ले लें और तमाम आईआर ड्रॉप्स का अलजेब्रिक सम ले लें तो ये आपस में बराबर होगा। अब आप देखिए अब इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आपको सपोज R1 R2 और करंट का पता है, एक सोर्स की ईएमएफ का पता है, आप दूसरे सोर्स का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज अगर ये पता है कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सोर्सेस अगर नोन है, R1 R2 नोन है, तो ये नोन से कैलकुलेट कर करंट। लेकिन लोग this is the algebraic sum of all the EMFs। और इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि EMF का क्या मतलब है? Potential difference। EMF is a kind of potential difference। What is IR? IR is also a kind of potential difference। This potential difference, IR drop का मतलब है according to Ohm's potential difference। If you see, अगर ये potential difference है, तो potential difference का मतलब है work done per unit charge, या work done per unit charge का मतलब है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सोर्स क्या करती है, बैटरी क्या करती है, बैटरी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके
सप्लाई करती है। तो इसका मतलब है दिस इज द एनर्जी सप्लाइड, आई कैन से दिस इज द एनर्जी सप्लाइड। और सर्किट क्या कर रहा है? सर्किट इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, डिसिपेट करता है। ओके, सोर्स का काम है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना, और सर्किट का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। तो याद है कि सर्किट क्या करते हैं? इस एनर्जी को डिसिपेट करता है। डिसिपेशन मींस conversion of electrical energy into non-electrical energy. So we can say this is the energy dissipated. This is the law of conservation of energy. If you see, this is the law of conservation of energy. So देखिए KCL tells us about the conservation of charge, लेकिन KVL tells us about the conservation of energy. KVL is a manifestation, it is a representation of the law of conservation of energy. देखिए इट मीन्स कि किसी सर्किट में जितनी भी सोर्सेज है उन तमाम सोर्सेज का जो अलजेब्रिक सम है, मतलब जो नेट पोटेंशियल रेफरेंस है, जो नेट लीनियर है, वो जितनी एनर्जी सर्किट को सप्लाई करती है, तो सर्किट कैसे क्या करता है? डिसिपेट। सो वी से एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड, मींस एनर्जी इज कंजर्व्ड. So this law is basically telling us, giving us information regarding the law of conservation of energy. And you know, law of conservation of energy, this is another very authentic law, a universal law, a natural law. Law of conservation of charge भी natural law है, और law of conservation of energy भी natural law है. तो KCL law of conservation of charge को satisfy कर रहा है, और KVL लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई कर रहा है, ओबे कर रहा है. तो याद रखिए किरचॉफ लॉज हम क्यों स्टडी करते हैं? किरचॉफ लॉज की इंपॉर्टेंस ये है कि एनी सर्किट व्हिच इज कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट का मतलब है जिसमें हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि रेजिस्टर्स आर ईदर कनेक्टेड इन पैरेलल और इन सीरीज, या जिसमें एक से ज्यादा बैटरीज या सोर्सेज हो, तो ऐसे सर्किट्स को हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स कहते हैं. कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में हम डायरेक्ट ओमला अप्लाई नहीं कर सकते. ओमला हम अप्लाई करेंगे, लेकिन जिस तरह किरचॉफ कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दीस रूल्स वी विल अप्लाई द, ठीक है, वी विल अप्लाई द ओमला. तो याद रखिए जो KVL है इसे हम लूप रूल भी कहते हैं, ठीक है, वो जो KCL है उसे जंक्शन रूल भी कहते हैं वगैरह.